Okay, so today we will discuss about metals. What are the metals? Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. Means वो elements those conduct heat and electricity means जिनके through heat and electricity जिनके through pass हो सकती है and that can be malleable मीन्स ये होता है कि कोई और उसमें से दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं उनको किसी तरह से हीट करके, दैट इज malleable। एंड डक्टाइल मीन्स स्ट्रेच कर सकते हैं उनको, जैसे वायर्स निकालनी होती है वायर्स बना सकते हैं, आयरन की वायर्स बनाती है, कॉपर की वायर्स बनती है जैसे, ठीक है। तो metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductiles. So there are many examples of the metals like iron, aluminium, silver, copper, gold, platinum, lead, potassium, sodium, calcium and magnesium. तो मेटल्स की एक जो खास प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form positive ions by losing electrons. The metals are known as electropositive elements. Okay, so these lose electrons and form positive ions only. So when we see the chemical properties or the chemical reaction, then we would see that how these electrons can be loosed and how positive ions can be formed. So metals are known as electropositive elements. So there are some properties of the metal. There are the physical properties as well as chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज एक इंडिविजुअल हर एक मेटल्स की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल हार्ड है, स्ट्रेंथ है, उसकी स्टेट क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर है, मेलाइबल है, डक्टाइल है, इस तरह का एक जो होता है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, व्हेन मेटल्स meet with another metals या another gas or some other, then what product will become, that is the chemical properties. The first one is the physical properties. Physical properties is the hardness. Most of the metals are hard except alkali metals. Alkali metals हो गए just like sodium, potassium, lithium, these are the soft metals. But all other metals like iron, aluminium, silver, copper, gold, all these are very hard metals. But the soft metals can be cut using a knife. But जो hard metals है that can't be cut with a simple kitchen knife. You have to use many other instruments and to follow many process to cut them. Then is the strength, is the second property. Most of the metals are strong and have high tensile strength. Big structures are made using metals just like copper, iron. तो जो हार्ड मेटल्स होते हैं उन्हीं से बिग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। बिग स्ट्रक्चर्स मींस जैसे पुल बनाए जाते हैं और उसमें बहुत सारा आयरन जो लगाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ की वजह से हम यूज करते हैं उसमें। वहां पे सॉफ्ट मेटल सोडियम या पोटेशियम यूज नहीं करते हम कभी भी, वहां पे सिर्फ हार्ड मेटल्स ही यूज करते हैं। देन इज द स्टेट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है, मरकरी जिसका सिंबल Hg होता है। Mercury is a metal which is liquid in form at the room temperature. Other metals are solid like iron, gold, silver, all are the solid at room temperature. Sound, metals produce sound, ringing sounds. तो इसकी वजह से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो मेटल वायर्स होती है, मेटल वायर्स, बिकॉज द मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, तो इनको सोनरस भी बोलते हैं। तो साउंड ऑफ मेटल इज नोन एज ए मेटेलिक साउंड। तो इसकी वजह से जो आयरन्स होते हैं उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
बनते हैं या मेटल वायर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जैसे हारमोनियम में जो वायर्स होती है, those are the metal wires. Then conduction. Metals are good conductor of heat and electricity. So electric wires are made of metals like copper and aluminium, because they copper and aluminiums are very good conductors of electricity, and electricity can be easily passed through them. तो गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो भी वायर्स हैं, जो घरों में जो वायर्स यूज होती है हमारी, उसमें अगर हम देखेंगे वायर के ऊपर जो कोटिंग लगी होती है उसको हटा के अगर हम देखेंगे तो नीचे हमें पतली पतली सी तारें मिलेंगी, वायर्स मिलेंगी बहुत सारे। तो वो सब मेटल्स की, कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। malleability, these are the malleable, these can be beaten into a thin sheet। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के हम थिन शीट्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम शीट्स कैन बी यूज फॉर द डोर, फॉर विंडोज। ऑफिस होते हैं, ऑफिस के जब पार्ट करने होते हैं तो उसके बीच में हम एक वॉल खड़ी कर देते हैं पूरा एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम को थिन शीट में उसको बीट करके थिन शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द malleability। आयरन इज यूज्ड इन मैनी बिग शीट्स, जब उसको बीटन करके और थिन शीट्स में बनाया जाता है तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दोज आर द malleable, दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। ductility, metals are ductile, this means metals can be drawn into thin wire। तो थिन वायर्स होती है, थिन वायर्स में उसको ड्रॉ, मेटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वायर इज ए मेड ऑफ मेटल्स। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट टू मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम, विच हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बट मेटल्स अदर all other metals have generally high melting and boiling point। So what are the boiling and the melting point? Boiling point is that when a solid state, when a liquid state change into vapors, that is the boiling point। and melting is that when a solid thing that convert into liquid। तो इस तरह से एक जो melting and boiling point है, metals का जो boiling point है और melting point both are very high except sodium and potassium। density, most of the metals have high density। and color, most metals are gray in color, gold and copper are exceptions to these। then the chemical properties of metals, metals when react with any other, then they produce some others, that is the chemical properties। like most of the metal form metal oxides when reacting with oxygen। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, नया मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, एज शोन इन द एग्जांपल, यू आर सीइंग इट इन द शीट, metal plus oxygen is equal to metal oxide। reaction of potassium with oxygen, potassium metal forms potassium oxide when react with oxygen। it means potassium 4K plus O2 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। तो जो भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, अगेन सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। इट मींस 4Na plus oxygen, it would produce 2Na2O, it means sodium oxide। तो जो भी मेटल रिएक्ट करेगा वो सब के सब मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर नोन एज alkali metals, and alkali metals react vigorously with oxygen। alkali metals जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, वो बहुत तेजी से उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। Then is the reaction of copper metal with oxygen। Copper doesn't react with oxygen at room temperature। ये एक बहुत ही नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि जो कॉपर होता है that doesn't react with oxygen
at room temperature, but when burnt in air it gives oxide. It means ये होगा कि जो भी मेटल, कोई भी मेटल होता है, when the metal react with the oxygen, then that wood gives oxide. So 2 copper plus oxygen, 2 copper oxides. Silver, gold and platinum don't combine with oxygen of air even at high temperature. They are the least reactive. तो जैसे sodium and potassium are the vigorously reactive, just like silver, gold and platinum are the less reactive and they don't combine with the oxygen of air even at high temperature. They are the least reactive. Then what becomes when metals react with water? Metals form respective hydroxide and hydrogen gas when reacting with water. Metal plus water, metal hydroxide plus hydrogen. तो बहुत सारी metals होती है, don't react with water. However, alkali metal react vigorously with water. तो जो alkali metals होती हैं, sodium and potassium, they react vigorously with oxygen as well as they react vigorously with water. Most of the metals don't react with water. Now, reaction of sodium metal with water. जब आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो then that would produce hydroxide as well as ion like Na, sodium plus H2O water. रिएक्शन क्या हो जाएगा? NaOH, sodium hydroxide plus H2 hydrogen. Then when calcium metal react with water, it would produce calcium hydroxide and hydrogen like Ca plus 2H2O, CaOH2, calcium hydroxide plus hydrogen. These are the equations which you have to remember. And there is no need to remember. Once your concepts are clear and you know that which one react with another, then what would produce, then you can solve all the problems. Like if there is a water and any metal react with water, then that would produce hydroxide and hydrogen gas. If this concept is clear, then either sodium react with water, calcium react with water, magnesium react with water, aluminum react with water, zinc react with water, then all would produce hydroxide like Mg plus H2O, magnesium hydroxide, MgOH2 plus hydrogen. ये है कि magnesium metal react with water slowly. Magnesium metal reacts with water slowly and forms magnesium hydroxide and hydrogen ion. But another thing is to consider here that when magnesium metal is passed through steam is passed over magnesium metal, then magnesium oxide and hydrogen gas are produced. Steam, गरम जो पानी है, स्टीम जो होती है, भाप, वेपर्स होता है, जब मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करेगा देन दैट वुड प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सिंपल वाटर के साथ जब करते हैं तो वो H2O के साथ अगर करेगा सिंपली तो देन दैट वुड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. बट व्हेन दैट प्रोड्यूस स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल, बिकॉज जो मैग्नीशियम जो होता है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए उसमें स्टीम पास की जाती है. जब स्टीम पास करेंगे तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी. व्हेन स्टीम इज पास देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड लाइक Mg H plus H2O, MgO plus H2. Okay. Reaction of aluminium metal with water. Aluminium metal with cold water is too slow to come into notice. जब सिंपली वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराओगे तो उसका जो रिएक्शन है वो ना के बराबर होता है.
but when steam is passed over aluminium metal, then aluminium oxide and hydrogen gas are produced. अब यहाँ पे दो चीजें निकल के सामने आती है. One is that when a metal react with water, some metals react with water that form hydroxide and hydrogen, but some metals like magnesium, aluminium, zinc, these are very slow very slow reactive with water. Even इतना स्लो होता है कि it is hard to notice. तो ये जब to react them with water, there is steam has to be passed. So when steam is to be passed, then that would produce oxide and hydrogen gas. So magnesium oxide plus hydrogen produced when magnesium react with water when steam is passed. इसी तरह से aluminium when steam is passed, then aluminium oxide plus hydrogen gas. When zinc metal with water, zinc plus H2O, then steam is passed, then zinc oxide plus H2 hydrogen gas. तो ये दो डिफरेंस यहाँ पे आपको नोट करने हैं कि कुछ मेटल सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, but some metals don't react with water. When those metals don't react with water, then steam is to be passed, and when steam is to be passed, then oxide and hydrogen gas is to be produced. Reaction of iron with water. Iron with cold water is very slow and come into notice after a long time. तो पानी में आपने आयरन रख दिया, बहुत टाइम के बाद उसको रख दो आप, तो क्या क्या हो जाएगा वो, देयर वुड बी रस्टिंग. तो जो रस्ट होता है, रस्ट इज द आयरन ऑक्साइड. तो व्हेन इट रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल. तो यहाँ पे फिर वही हो गया कि अगर कोई भी मेटल डोंट रिएक्ट विद द वाटर स्ट्रेटली, then oxide is to be produced. Both calcium and magnesium are heavier than water but still float over it. Why? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो वाटर से तो हैवी होते हैं बट वो इसके ऊपर तैरते रहते हैं. कोई रीजन? बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम float over water surface because hydrogen gas evolved when these metals react with water. हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, बबल्स की फॉर्म में निकल जाएगी, which stick on the metal surface, therefore they float over it. तो जो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है तो वो क्या होता है, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो रह जाते हैं और वो पानी से ऊपर रहेगा, हमेशा वो तैरती रहेगी पानी के ऊपर. So other metals which don't react with water or react very slowly, lead, copper, silver, gold, don't react with steam. ये steam के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है. तो वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है पोटेशियम की सबसे ज्यादा होती है और गोल्ड की सबसे कम होती है. Then reaction of metals with dilute acid. When metals form respective salts when react with dilute acid. Metal plus dilute acid HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, इसके साथ जब रिएक्ट करती हैं then that would produce metal salt plus hydrogen. तो जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल, when it react with सोडियम हाइड्रोक्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, then it would produce simple salt NaCl plus hydrogen. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, then that would produce sodium chloride and hydrogen gas. Reaction of magnesium metal with dilute hydrochloric acid, again hydrogen gas are formed, magnesium react with dilute hydrochloric acid. इसी तरह से है H2SO4, जिंक
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा जिंक H2SO4, देन दैट वुड प्रोड्यूस हाइड्रोजन अगेन जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मैटर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अगर HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करता है कोई भी मेटल तो उसमें हाइड्रोजन गैस पास नहीं होती है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidize the hydrogen gas liberated into water, and इसकी जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स। अब यहाँ पे कुछ एक है कि जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, कौन सी रिएक्ट नहीं करेगी? कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, इसलिए इनको नोबल मेटल्स कहा गया है। और इनका जो रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है इसके डाइल्यूट एसिड के साथ, और जो गोल्ड है वो सबसे कम। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सबसे पहले ये एसिडिक नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूं कि मेटल्स आर नॉट एसिडिक, दे आर बेस इन नेचर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो बेस की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जब मेटल ऑक्साइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर क्या होता है कि सोडियम ऑक्साइड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। तो जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जब प्रोड्यूस करते हैं तो देन दैट बिकम्स द बेस। तो Na2O प्लस H2O इट वुड प्रोड्यूस NaOH। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो देन potassium oxide gives potassium hydroxide when react with water, K2O H2O plus 2KOH। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। Aluminium oxide and zinc oxide are amphoteric in nature। एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो उनमें बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। तो इट रिएक्ट्स विद बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट्स विद एन एसिड लाइक ए बेस। तो ये जो जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, दीज आर द एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में क्या होता है? एम्फोटेरिक में दोज आर ऑफ द बोथ नेचर्स, एसिडिक और बेसिक नेचर होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे इन दिस रिएक्शन, सोडियम, जिंकेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो NaZNO2 plus H2O। जिंक ऑक्साइड लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड, तो जिंक ऑक्साइड गिव जिंक क्लोराइड। तो ZNOHCl ये जिंक क्लोराइड देगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स लाइक ए बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो यही है, पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है और कॉपर सबसे कम होता है। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल्स, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो ये अदर मेटल्स के साथ कैसे करता है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction in which more active metal displace the less reactive metals. Metal A plus salt of metal B, it becomes salt of metal A plus salt of metal B. तो जैसे आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हम आयरन Fe कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा अदर मेटल्स के साथ अगर आप उसको करवाओगे। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर, उसके आयंस सेम रहेंगे, बट वो है कि जो स्ट्रॉन्ग
रिएक्टिव मेटल होता है, दैट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। कुछ एक होता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, hence displaces silver from silver nitrate. तो silver metal doesn't react with copper sulfate. सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट नो रिएक्शन। इसी तरह से गोल्ड को अगर आप कॉपर नाइट्रेट में या कॉपर सल्फेट में अगर आप डाल दे तो भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। Au plus CuSO4 नो रिएक्शन। ओके, तो दिस होल अबाउट द metals, its physical properties and chemical properties. Thank you.